یہ کہانی ہے اس کرائے کے گھر کی جو ہم لوگوں نے آج سے 7 برس پہلے لیا۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن میں ہم لوگوں کو ایک گھر ملا۔ وہ گھر جو تھا خاصا بڑا گھر تھا۔ ہم لوگوں کو رینٹ پر کوئی گھر چاہیے تھا۔ ہم لوگوں کا اپنا گھر بک چکا تھا اور ابھی فی الوقت ہم لوگوں نے نیا گھر خریدا نہیں تھا۔ وقتی طور پر ہم لوگوں نے ایک کرائے کے گھر میں ہی جانا تھا۔ ابو نے دن رات ایک کیا، پراپرٹی ڈیلرز کو کہا، دوستوں کو کہا، رشتہ داروں کو کہا، تو کچھ جاننے والوں نے بلدیہ کی طرف ایک گھر بتایا۔ ایک ڈیلر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایک گھر خالی ہے۔ ابو نے جب جا کر دیکھا تو گھر ٹھیک تھا۔ گھر جو تھا بہت پرانا بھی نہیں تھا اور بہت نیا بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 2-3 سال سے بند تھا۔ شاید مالکان حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے، اپنا سامان بھی لے گئے۔ یہ گھر ان لوگوں نے کرائے پر ہی دینا تھا۔ تو ڈیلر نے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ ان سے بات کر لوں تو پھر میں آپ کو یہ گھر دکھا دوں گا۔ 2 دن کے بعد دوپہر 3 بجے کے قریب ابو کو فون آیا۔ اس ڈیلر نے کہا کہ مجھے اس گھر کی چابیاں مل گئی ہیں، آپ آئیے میں آپ کو گھر دکھا دوں۔ ابو نے ہم لوگوں کو بتایا کہ میں بلدیہ ٹاؤن والا گھر دیکھنے جا رہا ہوں۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ آئیں، کیونکہ یہ گھر بھی خالی کرنا اور گھر کو خالی کرنے میں صرف 15 دن بچے تھے۔ ابو جب گئے تو ابو کو گھنٹہ بھر لگا۔ اس کے بعد ابو آئے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ ابو آ کر کہتے گھر ٹھیک ہے، نہ بہت نیا ہے نہ بہت پرانا ہے صاف ستھرا۔ گھر کے پیچھے کچھ کچا سا حصہ بھی ہے، وہاں پر سبزیاں بھی لگ سکتی ہیں اور کچھ پودے بھی لگ سکتے ہیں، اچھی خاصی مٹی ہے وہاں پر، تو تم لوگوں کو بھی کل دکھا دوں گا۔ ابو رات تک اس گھر کی باتیں کرتے رہے۔ کمرے بھی بڑے کھلے ہیں، گھر جو ہے کچھ حصے ایسے ہیں جو تھوڑے پرانے ہیں، شاید وہ استعمال میں زیادہ رہے ہیں، اور گھر اس گھر سے تو خاصا بڑا ہے۔ ہم لوگوں کا گھر چھوٹا تھا۔ اگلے دن ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا تو دوپہر سے پہلے ابو نے کہا کہ گھر دکھاتے ہیں۔ ابو نے ڈیلر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پہنچے، میں آپ لوگوں کو گھر دکھاتا ہوں۔ ہم لوگ سب اس گھر کی لوکیشن پر پہنچ گئے۔ گھر باہر سے بھی ٹھیک تھا۔ اس گھر کے اندر جب ہم لوگ داخل ہوئے تو گھر دیکھا، امی نے کہا کہ گھر تو بہت اچھا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، کھلا کھلا سا گھر ہے۔ پچھلا صحن دیکھا جہاں پر وہ مٹی وغیرہ تھی، سب ٹھیک لگا۔ اس وقت تو کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ گھر میں کچھ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ گھر فائنل ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ایڈوانس دے دیا گیا، اور اب ہم لوگوں نے اس گھر میں شفٹنگ شروع کر دی۔ 1-2 دن صفائیوں پر لگے، کچھ تھوڑا بہت سامان جوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 4-5 دن کے اندر ہم لوگ کمپلیٹلی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ دسمبر کا اینڈ تھا جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ نئے گھر میں ویسے بھی جب آپ جاتے ہیں تو کچھ نیند نہیں آتی، مجھے تو بالکل بھی نہیں آتی۔ امی ابو سو چکے تھے، میرے بھائی بھی سو چکے تھے، میں صرف اکیلی جاگ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عادت تھی کتابیں پڑھنے کی، میں اکثر بک ریڈنگ کیا کرتی تھی، کبھی ناولز، کبھی ہارر ناولز، کبھی مختلف قسم کی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ان دنوں میں ایک ناول ریڈنگ کر رہی تھی، وہ بھی کچھ ہارر ہی تھا۔ ٹائم ہوگا تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا۔ میں اپنے کمرے میں ناول پڑھ رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے ایک عجیب سی آواز آئی۔ عجیب سی آواز ایسی تھی کہ جس طرح سے کوئی موجود ہے، کسی کے بولنے کی آواز آئی ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں سے کسی کی آواز نہیں ہے۔ نہ وہ امی کی آواز تھی، نہ ابو کی، نہ ہی بھائیوں کی۔ آواز کسی عورت کی ہی تھی، لیکن آواز بہت زیادہ باریک سی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بول رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے آواز پر غور کیا، آواز بالکل ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی تھی، اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا اور ایک تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ٹائم میں نے دیکھا تو 2 بجنے والے تھے۔ میں ایک دم اٹھی، کمرے سے باہر نکلی، برآمدے میں آئی، چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کچن میں گئی، میں نے گلاس میں پانی ڈالا، پانی پیا۔ مجھے ڈر وغیرہ نہیں لگتا تھا کیونکہ آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جس سے ڈر لگتا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے جو پچھلا صحن ہے وہاں پر کوئی ہلچل ہوئی ہے۔ اس کے آگے لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا،
लोहे का गेट होता है जैसे, ऐसा लगा जैसे उस गेट को किसी ने बंद किया है। मुझे लगा कि शायद गेट खुला रह गया है, हवा चल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली वगैरह इधर आ जाए। मैं चलती चलती उस गेट की तरफ चली गई। मैंने देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। मैंने आगे होकर गेट बंद कर दिया। जो ही मैंने गेट बंद किया, वही आवाज मुझे उस प्लॉट की तरफ से आई, वो जो पीछे एक थोड़ी सी जगह थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कान लगाकर गेट के पास से सुना तो उस तरह से किसी औरत की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे पता नहीं वो क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर गई। मैं भागी भागी कमरे में ही मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। खासी देर तक उसकी आवाजें गूंजती रही। उसके बाद सन्नाटा हो गया। मुझे भी नींद आई और मैं भी सो गई। सुबह अम्मी ने जगाया। मैंने अम्मी को ये बात बताई। अम्मी कहती है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अभी नई जगह है, नया घर है, लोगों के साथ साथ घर है, तो आवाजें आ जाती हैं, तो गेट खुला रह गया होगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मैंने नहीं कहा कि ठीक है। अब 1-2 दिन गुजर गए। वो रात को बस वही आवाजें आती थी, सरगोशी आती थी। मैंने अम्मी से कहा कि जो पीछे से ना उधर कुछ पौधे वगैरह लगाते हैं, कुछ सब्जी लगाते हैं, तो मैंने कहा पौधे तो लेकर आएंगे, ऐसा करो ये जाकर धनिया वगैरह लगा कर उस जगह को साफ करो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गई। मैंने जाकर झाड़ू से साइडें साफ की। साइडों पर थोड़ा थोड़ा सेहन भी था, तो वो जो कच्ची जगह थी वहां पर मैं नाइफ के साथ मिट्टी को थोड़ा और ऐसे नरम करके उसमें धनिया लगाने लगी। जो ही मैं मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे लगा नीचे से कुछ निकल रहा। मुझे लगा जैसे अक्सर मिट्टी में होती है लकड़ियाँ होंगी। मैं बाहर निकालती कि उसमें से हड्डियां निकलने लग गई, अच्छी खासी हड्डियां निकलने लग गई। मैं छुरी से वो निकालती जा रही थी, मिट्टी खोदती जा रही थी, हड्डियां निकलती जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने काफी लंबी हड्डियां देखी। मेरी तो चीखें निकल गई। 6-7 हड्डियां इतनी इतनी लंबी निकली। मैं चीखें मारती हुई भागी अंदर। मैंने अम्मी से कहा अम्मी उधर से हड्डियां निकल रही हैं, बहुत लंबी लंबी हड्डियां। अम्मी ने कहा कि हड्डियां कहाँ से आ गई। अम्मी गई, अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा कि हाँ ये तो हड्डियां हैं। अम्मी कहने लगी ये तो अल्लाह माफ करे, इंसानी हड्डियां लग रही हैं। ये हड्डियां किसी जानवर की तो नहीं लग रही हैं। देखो ये जैसे किसी के बाजू या टांग की हड्डी, यार ये देखो तो सही। हम लोग तो डर गई, बड़ी सख्त डर गई हम लोग भागी अंदर। अब वो भी घर पर नहीं थे। हम लोगों ने प्लॉट का दरवाजा बंद कर दिया, शीशे की तरफ का दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी ने कहा उधर ना जाना, शाम को अब्बू आएंगे तो फिर देखेंगे। अब्बू शाम को आए, अब्बू को बताया, अब्बू बड़े हैरान हुए। अब्बू उस तरफ भागे। पीछे भी एक लाइट लगी हुई थी, उसको जलाया, जाकर देखा। अब्बू ने कहा बात तो सच है, ये तो इंसानी हड्डियां लग रही हैं। यहाँ तक कि प्लॉट का दूसरा हिस्सा भी जैसे जैसे खोदते गए वैसी वैसी हड्डियां और निकल रही थी। अब्बू ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हड्डियां कैसे निकल सकती हैं। इस जगह को छोड़ दो, सुबह किसी को बुलाकर दिखाते हैं कि मामला क्या है। वो गेट बंद कर दिया, उधर आ गए। अब्बू भी बड़े परेशान, अम्मी भी परेशान। जो ही रात तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम हुआ, उस हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लग गई। इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई औरत बैन कर रही है, वाज़ेह तौर पर बैन कर रही है। 2 से 3 बार उस प्लॉट वाले गेट पर भी जैसे दस्तक हुई। मैंने तो आवाज़ें सुन ली, मैं गौर से सुन रही थी आवाज़ें। मैं जाग रही थी, देर तक जागती थी। रोने की आवाज़ें बहुत ऊंची हो गई। मैं भागी अम्मी अब्बू के कमरे में। मैंने अम्मी अब्बू को जगाया, भाई को जगाया कि बाहर से प्लॉट से वो जो पिछला सेहन है वहां से ऐसी आवाजें आ रही है। अम्मी ने कहा कि कोई बिल्ली तो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, किसी औरत की आवाज़ है और वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गेट पर दस्तक भी दे रहा है। अब्बू उठे, हम लोग बड़े दबे पांव सारे उस गैलरी की तरफ जा रहे थे जहां पर वो गेट लगा हुआ था। जैसे हम लोग उस तरफ गए, इतनी खौफनाक आवाजें थी कि डर लग रहा था कि आवाजें आ कहां से रही हैं। ऐसे लग रहा था कोई औरत उधर रो रही है और वाज़ेह तौर पर रो रही है। फिर ऐसा लगा जैसे जमीन के ऊपर कोई पाँव पटक पटक के चल रहा है। वो गेट तक आई, उसने गेट को बड़े जोर से धकेला, हमारी चीखें निकल गई, हम लोग भागे सारे अंदर। अब्बू ने कहा ये तो जगह ठीक नहीं है, ये तो जिन्नात है यहाँ पर, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। बिल्ली तो ऐसे गेटों को नहीं ना छेड़ती, और औरत की आवाज़ है, कदमों की आवाज़ है। भाई भी जा गया, सब भाई ने कहा खोल कर देखते हैं। अम्मी ने कहा गलती ना करना खोलने की, पता नहीं क्या मखलूक है घर के अंदर आ गई तो हम क्या करेंगे, रात के कहाँ जाएंगे। अब वो आवाज़ें बहुत ज्यादा आ रही थी, गूंजने लगी वो आवाज़ें। हम लोगों की तो बुरी हालत होगी खौफ से।
पूरी रात हम लोग सोए नहीं, कभी ऐसे कुर्सी पड़ते, कभी कानों पर हाथ रखते। वो डरा रही थी। अब्बू ने एक दो दफा बुलंद आवाज में कहा कि हमें तंग ना करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें नहीं पता था कि ये घर आज सेफ सदा है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। सुबह अबू ने फौरन से जाकर महल्लेदारों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं। इस घर में तो एक जैसे कोई पीछे कच्ची सी जगह, वहां से हड्डियां निकली हैं, आप लोग आकर देखें। उन लोगों ने देखा कि ये लोग तो अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं, तो ये क्या मामला बन गया। वो लोग आए, बहुत से लोगों ने कहा, कुछ कहते नहीं ये जानवर की हड्डियां लग रही हैं, कुछ कहते नहीं ये इंसानी हड्डियां ही लग रही हैं। एक बूढ़े अंकल आए, उनकी एज होगी कोई 80+। वो कहने लगे कि इस घर में तकरीबन आज से 50 साल पहले कब्रें थी, इस हिस्से पर कब्रें होती थी। इस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत रहते थे, तो वो बताते थे कि उनके पिछले हिस्से में कब्रें हैं। वो उन लोगों ने जब ये घर लिया था, जब ये घर बनाया था, ये कब्रें तब की वहां पर थी। वो लोग भी नहीं जानते कि ये कब्रें किसकी थी। तो वो कहते हैं कि हमें ख्वाब में इशारा हुआ था कि ये कब्रें इस तरफ तुम लोगों ने नहीं आना, यहाँ पर जिन्नात है। तो जो बूढ़ा अंकल और आंटी थे, उनको जिन्नात बहुत तंग करते थे। यहाँ तक कि 1 से 2 दफा जिन्नात ने, जो बूढ़े अंकल थे, उनको धक्का भी दिया था। वो लोग डर के इस घर को छोड़कर भाग गए। उन लोगों ने ही बताया था कि यहाँ पर जिन्नात है। फिर इस घर में उसके बाद एक फैमिली आई, उनकी बेटी की शादी थी। उनकी बेटी की मेहंदी वाली रात उसके ऊपर कोई चीज़ हावी होगी, उन लोगों को पता नहीं था। बाद में जब वो अंकल आंटी भागे तो वो कब्रें किसी ने मिसमार कर दी, हटा दी, उनकी निशानी हटा दी। कहते थे ये बूढ़ा और बूढ़ी जो है, इनके दिमाग पर असर हो गया, कोई कब्रें नहीं है, वैसे मिट्टी की ढेरियां ये कब्रें कह रहे हैं। वो जब उन लोगों ने वो जगह कब्रें हटाकर वहाँ पर जैसे अपनी तरफ से पौधे शौधे लगा दिए, पौधे जल जाते थे वहाँ पर। तो जिनकी वो शादी थी, उन्होंने यहाँ पर मेहंदी के फंक्शन का कुछ अरेंजमेंट कर दिया। उसी रात लड़की को दौरे पड़ने लग गए थे। और वो जो लड़की थी, जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था। वो कहती थी मैंने यहाँ पर एक खौफनाक औरत को देखा, और यहाँ पर बैठकर रो रही थी मेहंदी वाली रात को। वो लोग भी भाग गए, 10-15 दिन में भाग गए। तो इस घर में असरात हैं, उस हिस्से में चुड़ैल आफत रहती है। हम लोगों ने जब ये सुना, हम लोग तो इतने परेशान कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। उस बूढ़े अंकल ने हमें यही मशवरा दिया कि ये जगह छोड़ दो, ये रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पर बड़े सख्त जिन्नात है। अम्मी ने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर नहीं रहना, कुछ भी हो जाए हमने नहीं रहना। अबू ने डीलर से बात की, डीलर बड़ा परेशान। वो कहता मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में कि ये घर इतने अरसे से खाली है, ये तो मुझे अब पता चला है। वो जिसने ये घर दिया वो झूठ बोल रहा था, उसको आगे से किसी डीलर ने चाबी अरेंज करके दी थी। बहरहाल हमने उनको बता दिया कि हमने ये घर छोड़ देना है, तो हमारे पैसे बेशक अभी आगे ना भेजना। मालिक से भी बात कर ली, इसने कहा ठीक है आप लोग छोड़ दें मेरा घर। घर ढूंढना शुरू कर दिया। अब सारी बात है, हमें कोई घर मिलना था तो हमने उस घर से जाना था। कोई घर नहीं था मिल रहा, और रात को मखलूक सोने नहीं देती थी, आवाज़ें आती थी। हम लोगों ने वाज़ेह तौर पर पूरे घर ने खड़े होकर कहा कि हम लोग इस घर में नहीं रहना चाहते। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर तुम्हारा बसेरा, हम कभी इस घर में आते ही ना। लेकिन फिर भी उस घर से रात भर रोने की आवाज़ें आती थी। वो जो भी मखलूक थी, बसेरा उसका उसी हिस्से में था। ये शायद हम लोगों ने एक काम किया था। अबू को एक मौलवी साहब ने कहा था कि आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के, और कमरे की कुंडी बंद कर देनी है, फूंक नहीं मारनी, बस ये नियत कर लेनी है कि हमने इसको खोलना नहीं है, तो वो मखलूक इस तरफ नहीं आ सकेगी। फिर हमने ऐसे ही किया। तो वो जो घर के अंदर से 1-2 बार जो आवाज़ें आई थी वो नहीं आई, लेकिन उस हिस्से से रात भर आवाज़ें आती थी। बिल आखिर हम लोगों को तकरीबन 10वें-12वें दिन एक घर का पता चला, वो मलीर में था। फिर हम लोगों ने वो घर ले लिया और बल्दिया टाउन वाला वो घर छोड़ दिया। आज भी जब हम लोगों को वो घर याद आता है, हम लोग बहुत डर जाते हैं। हमें बहुत डर लगता है ये सोचकर कि हम एक ऐसे घर में गए थे जहाँ पर कब्रें थी, और वो क्या मखलूक थी, वो कब्रें किसकी थी, हम लोग नहीं जानते। ये हमारी एक कहानी थी। मेरी तो फैमिली ये थी एक खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।